چارلی کی زبان کے زخم سے خون جاری ہو چکا تھا۔ سوجے ہوئے اور زخمی چہرے سے باہر نکلی ہوئی سرخ زبان بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا تماشا دیکھنے والے قیدیوں کی حالت ابتر ہوئی جا رہی تھی۔ میرے اماں پر جلال نے چاروں قیدیوں کو ان کے ٹھکانے پر واپس پہنچانے کی ہدایت کی اور ہم دونوں واپس نیچے آ گئے۔ یہ تشدد کا بہت بھیانک اور آسان طریقہ ہے۔ راستے میں جھری جھری لے کر وہ بولا، وہ اس عذاب کو زیادہ دیر تک سہ نہیں سکے گا۔ نیا قیدی کون ہے؟ اس کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا۔ دفتر میں واپس پہنچنے کے بعد میں نے دھیرے سے کہا، اسے حیدرآباد سے پکڑا گیا ہے، سول ایوییشن کا ملازم ہے۔ شبہ ہے کہ وہاں کے ریکارڈ سے بہت سے اہم نقشے اس نے غائب کیے ہیں۔ اس کا سالہ کراچی میں انڈین قونصل خانے کا پرانا ملازم ہے۔ اسے کل ہی اٹھایا گیا تھا۔ یہ بھی ہندو ہے؟ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ غدار کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہے اور اس کے خلاف مضبوط واقعاتی شہادتیں موجود ہیں۔ میں نے دانستہ اسے بلوایا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ تم چارلی کو کسی انوکھے تشدد کا نشانہ بناؤ گے۔ یہ طریقہ تمہارے ذہن میں کیسے آ گیا؟ را کا ہر ایجنٹ اپنے زوم میں مرد اہن ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے خلاف میدان میں اترتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا ہے۔ جب تک ایسے لوگوں کے جسم کے حساس مقامات کو اذیت کا نشانہ نہ بنایا جائے، یہ زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اب اوپر سے کسی بھی وقت اچھی خبر آ سکتی ہے۔ ذرا سی دیر میں اس کے حلق میں کانٹے پڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ہتھیار ڈال دے گا۔ اس نے اب بھی زبان نہ کھولی تو پانی میں تیز مرچیں ڈال کر سارا پانی اس کے دھانے اور چہرے پر انڈیل دوں گا۔ میں نے کہا، ایسے لوگ مار پیٹ کے عادی ہوتے ہیں، اس سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار کرنا پڑا، نہ اگلے مرحلے پر عمل پیرا ہونے کی نوبت آئی۔ صرف آدھے گھنٹے بعد M3 نے آ کر خبر دی کہ قیدی زمین سے اپنا سر ٹکرا کر اثباتی اشارے دے رہا تھا۔ زبان کے کھچاؤ کی وجہ سے سوئے کا سوراخ خاصا پھیل گیا تھا، جو اس کے لیے بدترین اذیت کا باعث بن رہا تھا۔ جلال نے ستائشی نظروں سے میری طرف دیکھا اور فتح مندانہ انداز میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ سلطان شاہ مجھے کلفٹن چھوڑنے کے بعد گھر پہنچا تو ویرا گھر سے باہر جانے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سلطان شاہ چونک پڑا۔ خیریت تو ہے؟ آج کس سے ملنے کی تیاری ہے؟ اس نے سیدھا سوال کرنے کے بجائے ویرا سے تنزیہ انداز میں پوچھا۔ میں بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ ویرا مسکرا کر ایک ادا سے اس کی طرف بڑھی اور وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ الٹے قدموں سے رکھتا ہوا ہکلایا، اپنی جگہ پر بیٹھ کر بات کرو۔ صبح اٹھ کر آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیا کرو، اوقات معلوم ہو جائے گی۔ میں تم سے ہم آغوش ہونے کے لیے نہیں، غزالہ کے دروازے پر دستک دینے کے لیے اٹھی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اس کے قریب سے گزرتی ہوئی غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور سلطان شاہ خفت امیز انداز میں مسکرا کر گیا۔ جلدی آؤ، گاڑی لوٹ آئی ہے۔ ویرن دروازے پر دستک دینے کے ساتھ ہانک لگائی۔ 2 منٹ میں آ رہی ہوں، اندر سے غزالہ کا جواب آیا۔ آج نئی گاڑی میں کہیں باہر کھانا کھانے کا ارادہ ہے؟ اکیلی عورتوں کو مرد ڈھٹائی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورنے لگتے ہیں، چاہو تو تم بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہو۔ تم نے ڈینی کے بغیر یہ پروگرام بنا لیا؟ سلطان شاہ نے سر کھجاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ دن رات اپنے چکروں میں الجھا رہتا ہے، آج بھی آدھی رات سے پہلے واپس نہیں آئے گا۔ اس کی واپسی سے پہلے ہم لوٹ آئیں گے۔ تم دونوں کا جانا مناسب نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، سلطان شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ چام ڈلے ہوٹلوں میں شرفا کے ساتھ اوباش لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ کسی نے زبردستی تمہارے ساتھ مل بیٹھنے کی کوشش کی تو ساری تفریح غارت ہو جائے گی۔ تفریح برباد کرنے کے لیے تو تمہارا ساتھ ہونا ہی کافی ہے، کسی اور کو دخل انداز ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ویرا نے آنکھ مار کر کہا، لا حول ولا قوت۔ سلطان شاہ برا سا منہ بنا کر بڑبڑایا، تم ذہین اور پردبار عورت ہو، تم کو ایسی بازاری حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ بات کرتے ہوئے ذرا اپنی بائیں آنکھ پر قابو رکھا کرو، تم سامنے ہوتے ہو تو بلا وجہ یہ پھڑکنے لگتی ہے۔ ویرا نے شوخی سے جواب دیا۔ اس وقت ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، اس لیے ویرا کھلے دل سے سلطان شاہ کو کھسنے پر تل گئی تھی۔ جب تک غزالہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نہیں آ گئی، ان دونوں کے درمیان نوک جھوک کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس وقت ویرا کا ذہن منفی سمت میں چل رہا تھا۔ اس نے اصرار کیا کہ ڈنر کلفٹن کے علاقے کے کسی اچھے ہوٹل میں کیا جائے، لیکن غزالہ نے کلفٹن کا رخ کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ بات سب کے علم میں تھی کہ میں راہ والوں کی تلاش میں جلال کے ساتھ کلفٹن کی طرف گیا ہوا تھا۔ میں اس بات کو ہرگز پسند نہ کرتا کہ وہ لوگ کسی ہیلے بہانے سے ان اطراف میں آ کر میری سرگرمی کے سلسلے میں کوئی متجسسانہ رویہ اختیار کریں۔ ویرا نے زیادہ زور دیا تو غزالہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ اکیلی چلی جائے۔ سلطان شاہ غزالہ کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ وہ بھی میرے مزاج اور ویرا کے شرپسندانہ رویے سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کسی کو چڑھانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ آخرکار ویرا کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور قرہ فعال بیچ لگژری ہوٹل کے نام نکل آیا، جو ساحل سمندر کے دوسرے سرے پر واقع تھا۔
खरपा मामूर STF के दोनों अहलकारों को चौकन्ना रहने की हिदायत करके वो तीनों नई गाड़ी में होटल के लिए रवाना हो गए। क्लिफ्टन पर मजार के गिरदोनवा का इलाका डैनी और जलाल की तवज्जो का मरकज बना हुआ होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों ने पूरे क्लिफ्टन को क्यों ममनू इलाका करार दे दिया है। रास्ते में वीरा फिर वही जिक्र निकाल बैठी। वो मजार से काम की इब्तिदा करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वो दोनों वहीं तक महदूद रहें। गजाला ने उसे जवाब दिया, अपने मतलूब अफराद की तलाश में वो किसी भी समत में निकल सकते हैं। इनसे कहीं आमना सामना हो गया तो मैं वो खजालत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। यह वफा सिर्फ औरत के मिजाज में पाई जाती है। वीरा ने फौरी तौर पर पैंतरा बदल दिया। ये चीज मर्दों को छू कर भी नहीं गुजरी। अपने अपने तजर्बे की बात है, गजाला बेपरवाही से बोली। डैनी मेरे लिए मिसाली और वफादार शौहर साबित हुए हैं। तुम इन मर्दों को नहीं जानती, ये ऊपर से कुछ और नजर आते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। खूबसूरत और जवान साल औरतों के बारे में दुनिया के सारे मर्द एक तरह सोचते हैं। डैनी और सुल्तान शाह भी इस बरादरी में शामिल है। बिला वजह मेरा नाम मत लो, मैं ऐसे चक्रों में नहीं पड़ता। सुल्तान शाह ने एहतजाज किया। मैं किसी का नाम नहीं ले रही। सुल्तान शाह को जवाब देकर वो गजाला से मुखातिब होगी। मैंने तुम्हें एक लफ्ज नहीं बताया, लेकिन मुझे मालूम है कि मर्द अपने पुराने दोस्तों से किस तरह खुली खुली बातें करते हैं। पैर के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक निस्वानी सरापा का कोई हिस्सा इनकी जुबानी दस्तर से बाहर नहीं होता। मिसाल के तौर पर, क्या तुम कुछ देर के लिए खामोश नहीं रह सकती? सुल्तान शाह ने मुसरिबाना अंदाज में उसकी बात काट कर कहा, रह सकती हूँ, शर्त यह है कि आज के खाने का बिल तुम अदा करोगे। बिल कोई भी अदा करे, जोर डैनी की जेब पर पड़ेगा। हम इसके माल पर मजे कर रहे हैं। इन्होंने कभी ये बात नहीं की। गजाला ने एतराज किया। कोई कहे या ना कहे, हकीकत यही है। सुल्तान शाह को मौजू बदलने का मौका मिल गया। ये शी वालों की गन बोर्ड की फरोख्त से हासिल होने वाला सरमाया है, जब तक हमारे काम आ रहे। गजाला ने वजाहत की, यह रकम हम सब की मुश्तरका मलकियत है, कोई किसी पर बार नहीं बना हुआ। अगर ये डैनी की सोच है तो ये उसकी शराफत और मेहरबानी है। वीरा ने संजीदगी से कहा, पर न सब कुछ तुम दोनों का है। सुल्तान शाह इन दोनों की गुफ्तगू में पूरी तरह शामिल हो गया ताकि वीरा को दोबारा कोई नाजुक बात छेड़ने का मौका न मिल सके। मौलवी तमीजुद्दीन रोड से होते हुए वो लोग बीच लग्जरी होटल की तरफ जाने वाले मुख्तसर रास्ते पर मुड़ गए। यूं ही सुल्तान शाह ने होटल पहुंचने के लिए दूसरा मोड़ काटा, वीरा अचानक नीम हज़ियानी अंदाज में बोल पड़ी, रोको, गाड़ी रोको। सुल्तान शाह ने घबराकर ब्रेक लगा दी और गाड़ी एक झटके से वहीं छूल कर रखी। क्या हुआ, क्या बात है? गजाला पिछली निशिस्त से घबराकर आगे झुकाई। सुल्तान शाह ने बराबर वाली निशिस्त पर निगाह डाली तो वो होटल के सामने वाली इमारत की समत में देखे जा रही थी। क्या देख रही हो? सुल्तान शाह ने उसकी आंखों के सामने हाथ लहराकर पूछा। वो वीरा की गैर मुतवक्का हरकत से भन्ना गया था। वो सामने सोबराज जा रहा है। वीरा ने हैजान ज़दा आवाज में सरगोशी की। इन दोनों की नजरें बेइख्तियार उसी समत में उठ गईं जिधर वीरा निगरां थी। होटल के सामने वाली कमर्शियल बिल्डिंग के साए में एक दराज कामत और सेहतमंद शख्स अपने शाने झुकाए आगे चला जा रहा था। उसके जिस्म पर स्याह रंग का एक नफीस सूट था। वो दोनों उसके पुश्त देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि वो कौन था। तुम ख्वाब तो नहीं देख रही? सोबराज यहाँ क्या करने आएगा? सुल्तान शाह ने चिड़चिड़ लहजे में सवाल किया। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वीरा ने पुरजोश लहजे में दावा किया। उसने शाह शीशों की ऐनक लगाई हुई है। वो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तोते की चोंच की तरह खम खाई हुई अपने नाक को नहीं छुपा सकता। मैंने सिर्फ एक झलक देखकर उसे पहचान लिया। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर लेते? कोई बात नहीं, गजाला ने मुसालियाना लहजे में कहा। गाड़ी जरा आगे निकाल कर जाओ, सामने से देखकर तस्दीक हो जाएगी कि हरगिज नहीं। वीरा ने तेजी से उसकी बात काट दी। भूल कर भी ये गलती ना करना। जिस तरह मैंने उसे पहचाना है, वो भी एक नजर में मुझे पहचान लेगा। यहीं रुके रहो, देखते हैं कि वो कहाँ जाता है। अचानक स्याह सूट वाले का सफर खत्म हो गया। वो एक स्याहकार के पास रुका और इत्मीनान से दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग के सामने जम गया। इस शानदार गाड़ी के दरवाजे गैर मुकफ्फिल थे, या फिर उसने रिमोट कंट्रोल के जरिए दूर ही से दरवाजे का लॉक खोल दिया था। इसकी गाड़ी का रुख उस सिमत में था जिधर वो गया था, इसलिए अंदर बैठते हुए भी उसकी पुश्त इन तीनों की तरफ रही थी और इन्हें इसकी दूसरी झलक देखने का मौका नहीं मिल सका था। अब देखते हैं कि वो किधर जाता है। गजाला खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाई। इन तीनों ने देखा कि खड़े खड़े इस गाड़ी के टायर पावर स्टीयरिंग की वजह से बाएं तरफ घूमते जा रहे हैं। साफ जाहिर हो रहा था कि स्याह सूट वाला यू टर्न लेकर इनकी तरफ आने का इरादा कर चुका था। इस बार वीरा को कोई हदायत जारी करने की जरूरत पेश नहीं आई। मौका की नजाकत भांप कर सुल्तान शाह गाड़ी को रिवर्स गियर में सड़क के पिछले किनारे तक लेता चला गया। अचानक से कार तेजी से हरकत में आई और मुख्तसर से नीम दायरे में यू टर्न लेकर आगे बढ़ती चली गई। सड़क पर इस गाड़ी के टायरों की तेज आवाज से जाहिर हो रहा था कि गाड़ी चलाने वाला अगर कोई शोदा नहीं
तो आसाब ज़दा शख्स ज़रूर है। वो गाड़ी इस मुख्तसर सी सड़क पर बहुत तेज रफ्तारी के साथ इनके सामने से गुजरी। उसके हेडलैम्प्स की रोशनी से बचने के लिए वीरा विंडशील्ड से नीचे झुकती चली गई। वो गाड़ी बाएं तरफ मुड़कर मेन रोड की तरफ चली गई। इस दौरान में गजाला और सुल्तान शाह ने स्याह कोट वाले की खमदार नाक देख ली थी और कायल हो गए थे कि वीरा से अंदाजे की कोई गलती नहीं हुई थी। इनकी गाड़ी का इंजन चल रहा था। सुल्तान शाह ने पहला गियर डालकर हाँक लगाई। सोबराय या डिनर, इस वक्त किसे तनावुल फरमाया जाए? डिनर पर लानत बेचो, इसके पीछे चलो। वीरा सीधी होकर झल्लाई हुई आवाज में बोली। तुम दोनों की बेमकसद चिरा में उलझ कर मैं इसकी गाड़ी का नंबर भी नहीं देख सकी। किसी ने नंबर नोट किया है उसका? इन दोनों के पास मुजरमाना खामोशी के सिवा कोई जवाब नहीं था। सुल्तान शाह ने खिफत मिटाने के लिए बहुत तेजी से गाड़ी चला दी। वीरा के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ होने के बावजूद वो ये देखना नहीं भूला था कि सोबराज की कार मेन रोड पर दाएं तरफ मुड़कर PIDC हाउस की समत में गई थी। वो सड़क साफ और कुशादा थी। सोबराज अपने देख लिए जाने की खौफ से बहुत तेज रफ्तारी के साथ रवाना हुआ था, मगर सुल्तान शाह भी इस वक्त नई जैसी और ताकतवर कार दौड़ा रहा था। उसने जरा सी देर में सोबराज की कार को जा लिया। तुम नीचे झुक जाओ, गजाला ने वीरा के शाने पर हाथ मारकर कहा। इसने अकबनो आईने में किसी जाविये से तुम्हारी झलक भी देख ली तो वो चौकन्ना हो जाएगा। वीरा ने बेचू चुनाव उसके मशवरे की तामील की। इसके लिए ज्यादा देर तक इस पोजीशन में रहना दुश्वार था। दूसरा मसला यह था कि वो जाती मुशाहिदे की नेमत से महरूम हो चुकी थी। उसने अपना चेहरा पीछे घुमाया और अगली निशिस्त के दरमियान से गुजर कर अगली निशिस्त पर गजाला के बराबर में बैठ गई। वो पीछे जा रही थी तो सुल्तान शाह ने गैर इरादी तौर पर उसकी पुश्त पर एक धप रसीद कर दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने मशीनी अंदाज में बोलना शुरू कर दिया। तुम्हें चलती गाड़ी में भी चैन नहीं है? जरा सी यूं ही झुक कर बैठी रहती तो कौन सी कयामत आ जाती। अभी मेरा हाथ बहक जाता तो गाड़ी फुटपाथ से टकरा जाती। मैं तुम्हारी इन घटिया हरकतों को खूब समझती हूँ। वीरा बुरा मनाए बगैर बोली। इसका हिसाब किताब बाद में होगा। ये बताओ कि इस वक्त तुम्हारे पास गाड़ी में कोई हथियार मौजूद है? खुदा का खौफ करो वीरा, वो तलखी से मनमनाया। हम तफरीह और डिनर के लिए निकले थे, हथियार साथ लेने की क्या तुक थी? पुरानी गाड़ी में हर वक्त एक आध पिस्तौल और भरे हुए मैगजीन पड़े रहते थे। ये गाड़ी अभी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें भी चीजें जमा होती चली जाएंगी। इस वक्त गाड़ी में औजारों के थैले के अलावा कुछ भी नहीं है। अजीब बेबसी है। ये सोबराय पर हाथ डालने का सुनहरा मौका है जो कुदरत ने हमें अता किया है और हम बिल्कुल खाली हाथ हैं। वीरा मुस्तरिबाना लहजा में बोली। इस वक्त ये निकल गया तो ऐसा मौका दोबारा हमारे हाथ नहीं आएगा। कम से कम हमने गाड़ी का नंबर तो नोट कर लिया है। उसके सहारे पता चल सकेगा कि इस वक्त शहर का कौन जी असर शख्स इसकी पुष्पनाई कर रहा है। गजाला ने दिलासा दिया। तुम दोनों हिम्मत करो तो मैं इसका रास्ता काटने की कोशिश करता हूँ। सुल्तान शाह ने पूरे एतमाद लहजे में पेशकश की। तुम क्या करोगे? वीरा ने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। साइड मार कर गाड़ी लड़ा दूंगा, वो रुकने पर मजबूर हो जाएगा। ये ना भूलो कि हम बिल्कुल निहत्ते हैं, वो यकीनी तौर पर मुसल्ला होगा। गाड़ी से उतर कर मुकाबले पर जम गया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। मैं इसके लिए भी तैयार हूं, तुम दोनों अपने बारे में सोच लो। नहीं, गजाला ने सख्ती से कहा। जब हमारी कामयाबी का कोई इम्कान ही नहीं है तो खतरा मोल लेना बेसूद होगा। ऐसी इम्काना खुदकुशी मुझे मंजूर नहीं है। तुम इसके हथियारों के बारे में सोचकर हौसला हार रही हो, वरना सूरत हाल इतनी मायूस कुन नहीं है। सुल्तान शाह ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। चोर के पांव नहीं होते। वो एक मफरूर इश्तिहारी मुल्जिम है। एक लम्हे के लिए भी टिक कर मुकाबला नहीं करेगा। कोई गड़बड़ होते ही भाग निकलने की कोशिश करेगा। हम इसकी बदहवासी से फायदा उठाकर उसे जेर कर सकते हैं। यह सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है जो गलत भी साबित हो सकता है। वीरा ने गजाला का साथ देते हुए कहा। फैसला करने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। इस वक्त सोबराज को निकल जाने दिया जाए तो बाद में कार के नंबर के सहारे इस पर भरपूर तैयारी के साथ हाथ डाला जा सकता है। वो बच नहीं सकेगा। अभी तुम उसे घेरने के लिए मरी जा रही थी, अब नई कलावा दिखा रही हो। हमारे पास ज्यादा बहस का वक्त नहीं है। इस कुशादा सड़क से गुजरकर हम शहर के ट्रैफिक की भीड़ में फंस गए तो चाहते हुए भी इसे नहीं रोक सकेंगे। बोलो तुम क्या कहती हो? वीरा ने फैसला गजाला के सर पर डाल दिया। यह सड़क तेजी से खत्म होती जा रही है। गजाला की आवाज गंभीर होगी। अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी लड़ा दो। कोशिश करना कि उसके करीब न रुकना पड़े। हल्का सा साइड मारते हुए आगे निकल जाओ। उसकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है और वो खौफसदा पिक है। घबरा कर अपनी गाड़ी कहीं और मार देगा। ओके मादाम, सुल्तान शाह ने तमस्खुर से कहा। आज पता चला कि तुम बहुत अच्छी हदायतकार भी साबित हो सकती हो। सुल्तान शाह ने अचानक अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। सोबराय ने गालबन अकब नुमा आईने में उसे करीब होते देखकर अपनी स्याह कार बाएं तरफ करके उसके गुजरने का रास्ता खाली कर दिया। सुल्तान शाह तेजी से उसके बराबर में पहुंचा। फिर स्टीयरिंग पर उसके हाथ ने हल्की सी जुम्बिश दी। फिजा एक होलनाक धमाके से गूंज उठी। जबरदस्त झटके के नतीजे में वीरा उछल कर गजाला पर आ पड़ी।
सुल्तान शाह से अंदाजे की जरा सी गलती हो गई थी। उसकी गाड़ी के पैसेंजर सीट का दरवाजा पिचक कर अंदर आ गया था। वीरा वहां बैठी हुई थी तो इसका शदीद जख्मी होने से बचना मुहाल था। तसादुम कुछ जोरदार हो गया था। तसादुम के बाद सुल्तान शाह ने अपनी गाड़ी संभाली और आगे बढ़ते हुए रफ्तार कम करता चला गया, लेकिन सोबराज अपनी गाड़ी पर कंट्रोल बरकरार नहीं रख सका। उसकी गाड़ी सड़क पर तेजी से बाएं तरफ लहराई, फिर यकायक रुख बदल कर दाहिनी तरफ दो रोया सड़क की वस्ती पट्टी पर चढ़कर मुखालिफ समत की सड़क पर चली गई। बैक वक्त बहुत सी गाड़ियों के ब्रेक लगे। तेजी से चलता हुआ ट्रैफिक थमा तो अंदाजा हुआ कि बज़ाहिर खाली नजर आने वाली वो सड़क इतनी वीरान भी नहीं थी। वीरा और गजाला गाड़ी से उतरती तो तमाशा बन जाती। सुल्तान शाह ने चालाकी से काम लेते हुए गाड़ी बाएं तरफ की फुटपाथ से तकरीबन मिलाकर रोकी थी, ताकि गाड़ी का नुकसान ज़दा हिस्सा लोगों की नजरों में ना आ सके। खतरा महसूस करो तो गाड़ी लेकर निकल जाना, मैं इसे देखता हूँ। वीरा को दानिशमंदाना मशवरा देकर सुल्तान शाह दौड़ता हुआ स्याहकार की तरफ लपका, जो शहर से आने वाली सड़क के वस्त में तिरछी खड़ी हुई थी। स्याहकार के गिर्द तमाशाइयों की भीड़ जमा होने लगी थी। हर शख्स अंदर घुसकर अपनी नजरों से गाड़ी का हशर देखने के लिए बेचैन था। इस हजूम में खमदार नाक वाले सोबराज का कहीं पता नहीं था। सुल्तान शाह को शुबा हुआ कि वो किसी शदीद ज़र्ब के नतीजे में बेहोश ना हो गया हो। अपने वजूद और ताकतवर बाजुओं की मदद से वह हजूम में अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो गया था। फिर यह देखकर उसके दिल को धचका लगा कि तबाह हाल स्याह गाड़ी खाली पड़ी हुई थी। सोबराज बाहर कहीं नजर आया, न अंदर था। इस वक्त इसके हवास बहुत तेजी से काम कर रहे थे। उसकी तवज्जो फौरी तौर पर उस ट्रक ड्राइवर की तरफ मफसूल हो गई, जो दूसरे तमाशाइयों पर अपनी मालूमात का रोब छाड़ने के लिए हादसे की तफसीलात बता रहा था। इसकी जुबान से यह सुनकर सुल्तान शाह को मजीद मायूसी हुई कि टक्कर के नतीजे में काले सूट वाला जख्मी हो गया था। अपनी गाड़ी से निकलते हुए एक खाली टैक्सी में बैठा और पोर्ट की तरफ रवाना हो गया। सड़क पर दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो चुका था। सुल्तान शाह अगले किसी कटाव से गाड़ी घुमा लेता, तब भी उसके लिए आगे बढ़ना मुहाल होता। वो किसी सूरत में सोबराज की टैक्सी का पीछा नहीं कर सकता था। वो दौड़ता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ हो लिया। इस वक्त हर शख्स की तवज्जो सोबराज की स्याह गाड़ी पर मरकूज थी, जो दोहरे हादसे के नतीजे में खासी बर्बाद हो चुकी थी। किसी ने उसकी गाड़ी के पिचके हुए दरवाजे पर ध्यान नहीं दिया था। गाड़ी बदस्तूर वहीं मौजूद थी जहां वो छोड़ कर गया था। उसे ड्राइविंग सीट संभाल कर इंजन स्टार्ट किया और तेजी के साथ वहां से रवाना हो गया। सोबराज जिंदा है या इस हादसे में मर गया? वीरा ने पूछा। मुर्दे फरार नहीं हुआ करते, सुल्तान शाह ने कहा। मैं कह रहा था कि चोर के पाँव नहीं होते। वो किसी ताखीर के बगैर एक टैक्सी में बैठकर पोर्ट की तरफ फरार हो गया। इस वक्त वो रास्ता मसदूद है। काली गाड़ी के हटने से पहले रास्ता साफ नहीं होगा। ये बहुत बुरा हुआ कि वो बचकर निकलने में कामयाब हो गया। गजालन राय से नहीं की। हमें उसको छेड़ना ही नहीं था। छेड़ा था तो उसे पकड़ना या फिर मार डालना चाहिए था। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। अब वो चौकन्ना हो जाएगा। ये तुम्हारे दिल का चोर है जो तुम्हें ये बात कहने पर मजबूर कर रहा है, सुल्तान शाह ने हल्की सी नागवारी से कहा। वीरा तो खैर परदेसी है, तुम इस शहर में पली बड़ी हो। तुमको मालूम है कि शहर में रोजाना कितने संगीन हादसे होते हैं। उसने वीरा को देखा ना इस पर किसी किस्म का कोई हमला हुआ। आखिर वो किस बात से चौकन्ना हो जाएगा? अगर उसके नजदीक ये कोई आम हादसा था तो वो गाड़ी छोड़कर क्यों भाग गया? इस नुक्ते पर गजाला उसके साथ बहस पर आमादा हो गई।